Hi guys, so welcome to another guest episode of Chalchitra Talks. Today we have Yaya Bootwala with us. Yaya एक पोएट राइटर और एक एक्टर है. आपने इनके बहुत सारे पोएट्री रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे. He also has a YouTube channel by his own name where he is uploading some amazing content. So I spoke to Yaya a few days back and he gave me a lot of TV show, music, movies, podcast and poetry recommendations. So let's jump right inside the conversation I had with Yaya Bootwala. Hi Yaya, thank you so much for doing this यार. How are you? मैं एकदम बढ़िया वैभव यार. थैंक यू सो मच यार. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस. So मुझे आपने बताया था कि you will be recommending some TV series and poetry. तो हम हाँ पहले आई थिंक सीरीज से चालू करते हैं क्योंकि पोएट्री के लिए तो सब आए ही हैं और जानना चाहते हैं कि आप पोएट्री में क्या रेकमेंड करोगे. सो वहाँ पे लास्ट में आते हैं बट फर्स्ट लेट्स टेक योर टीवी शो रिकमेंडेशंस. सो लेट्स बिगिन. यार तो आई थिंक टीवी रिकमेंडेशंस टीवी शोज रिकमेंडेशंस में लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लाइक जो मतलब अभी जैसे डार्क मुझे बहुत पसंद है हाँ ना. इवन ब्रेकिंग बैड. अब ये काफी फेमस है या ऑलरेडी. पीपल नो अबाउट इट. सो आई विल नॉट बी टेकिंग इन अकाउंट दोज वंस. थोड़ी ऐसे 6-7 है जो मुझे मतलब आई हैव सीन कि पीपल डू नॉट टॉक मच अबाउट इट. सो वो है. Right now I'm following this one series. It's called Band of Brothers. ओ नाइस हॉटस्टार पर. या एंड आई थिंक मैं बहुत लेट आया इस सीरीज हाँ पर बिकॉज ये बहुत पहले की है ना. एंड आई रिमेम्बर के सेविंग प्राइवेट रायन जब मैंने देखी थी हम्म बिकॉज इट्स अ रिप ऑफ फ्रॉम देयर ओनली. लाइक पहले फिल्म बनी और उसके बाद लाइक टॉम हैंक्स आल्सो वेंट ऑन टू लाइक प्रोड्यूस एंड मेक द सीरीज. या So it became such an interesting thing to just see in the war space how like what are the emotions these guys are going through. There is so much personal trauma to every character या that has not been talked about on face value, but you can see it in character journey. तो वो इतना सुंदर लगता है ना देखने के लिए. एंड आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज द फैक्ट कि मतलब लाइक व्हाई वॉर इज नॉट द आंसर फॉर थिंग्स या मेजरली. सो आई थिंक सबसे पहले बैंड ऑफ ब्रदर्स. उसके बाद हैव यू सीन इजी ऑन नेटफ्लिक्स? ओ नो आई हैवंट. Oh, it is a beautiful series. It's such a beautiful series. I think modern time के लिए like I don't even say that it's relatable because उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं that are not relatable. So how easy works is that it's a compilation of a lot of stories, right? जैसे Modern Love on Amazon, like how it's a या compilation या of different love stories. But the thing with Easy is like first season में आप तकरीबन 8 कहानियां देखोगे and then they are just episodes, right? One story is done, one story is done, and they leave it at a point where it's not a conclusion for the story. राइट ठीक है. तो you feel that there is so much more to the story. उसके अलावा बॉयज ऑन Amazon. या Oh, it's so crazy. आई थिंक मतलब हम क्योंकि आप बचपन में सुपर हीरोज और ये सब को ही देखकर बड़े हो गए, राइट? लाइक जस्टिस लीग देखी होगी, एनिमेटेड वाली पूरी सीरीज. मार्वल तो चलो ठीक है, मतलब मार्वल जस्ट केम लेटर इन द यूनिवर्स बिकॉज दे मेड लाइक Iron Man and all of these guys so well. But every time you show a superhero and super villain in a fashion that you know the superhero is more likable, राइट except like in Batman and Joker where you do not understand who to choose for. But like in major storylines, you always have like कि the superhero is so correct and मतलब he's got these virtues and everything. जैसे मतलब कैप्टन अमेरिका को आप देखते हो, ये आदमी गलत कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में types. राइट But what happens with boys is they bring the superhero also, like they show that the superhero can be greedy, the superhero can be manipulated. उसके अंदर जो मेव का कैरेक्टर है, who basically is like sort of like a Wonder Woman or sorts. ठीक है. You see like how she is struggling to accept her like coming out in front of the world. She's accepted her sexuality, but मतलब दुनिया में she can't bring it out क्योंकि you know how will people react, how will Homelander react, all of that is so much fear. Like and you realize भाई सुपर हीरो को डर लग रहा है, ये क्या सीन है. I think it's beautiful how they make superheroes human. So there are superheroes that you like, there are superheroes you dislike, and they are not anti-heroes. और कौन सी है? This is us. दिस इज अस. This is us. I think in terms of screenplay, I think it's one of the most fantastic written series ever. Like I've seen in like even in modern time, और मैं पुरानी सीरीज भी अगर उठाकर देखता हूँ कितने फैंटास्टिक तरीके से लिखा गया है.
Yeah. Like even till this point, I don't know what is the actual present for that story, है ना? Because you are at a point जहाँ पर वो लोग ने future भी बता दिया, है ना? So now what is the immediate present? The one that you see for like a longer time, does that become the present of the story, or the future is the present and the whole storyline is just functioning in the past? Yeah. And I think the genius part of it is like what I feel is the genius point in it is like the way they've written it. मतलब everything's a circle. Like past में कुछ चीज हुई है, how it reflects in the present time, in their future. जैसे एक मेरा बहुत ही सुपर फेवरेट है सीजन 4 में एपिसोड 18 द कैबिन. Okay. Like it's such a genius episode. They gave it a build up of 3 episodes. ठीक है, 3 एपिसोड में वापस वो सर्कल तो चल ही रहा था. But when they came to cabin, it's also related to the first 3 episodes जो आपने देखे 11, 12, 13, and so उनका भी एक reflection 14 पर आ रहा है, और साथ ही साथ there is another loop that they are closing, and I was like, what kind of genius do you have to be to think this through and write it? Yeah. And in season 4, right, like even when you are presenting it to suppose a streaming platform, आप season 2 तक सोचकर बताओगे कि हाँ ठीक है season 2 तक सोचा है. आप सीजन 4 में ऐसे अगर जीनियस कट्स ला रहे हो तो आई फील लाइक राइटर्स ने कितना सोच के रखा होगा उसके बारे में. Right. So I just feel that yeah, BoJack is something I genuinely love, but I don't know if BoJack मतलब because BoJack is again famous. BoJack is again like in the space के everyone knows about it. अच्छा तो इतना ज्यादा like when you talk about BoJack मेरा जब भी कोई ब्रेकअप होता है या कोई रिश्ते टूटते हैं वो डायलॉग हमेशा याद आता है मेरे को. Like when you look at someone through rose colored glasses, all the red flags just look like flags. And that dialogue is by Lisa Kudrow जिन्होंने Phoebe का रोल प्ले किया था Friends में. She was doing the voiceover for that, and like I always go back to that. Sometimes BoJack hits so hard, I'm like, यार ये ज्यादा ही real हो गया. And the thing with BoJack is you can't consume it, like you can't binge watch it. Yeah. Like after a point it starts hitting you in the head to the point where you just want to stop because it just gets overloaded for you. Yeah. जैसे I remember जब मैं वो ये episode देख रहा था when BoJack's mother is dead, it's just a monologue. वो जो That पूरे whole episode, yeah, exactly. just a monologue. And I just couldn't. Like मैंने BoJack के 5 episodes binge किए. That's the max I've done. 5-7 episode binge किए. उस दिन this is the first episode that I opened and I just couldn't do, like I couldn't see ahead. I was just like, ये क्या हो गया भाई? This is too much to consume. Because he comes from a space where you don't know exactly how to feel about BoJack. Like, should you be disliking the character? Are you supposed to like the character? Like, how much understanding does this character deserve from you? Yeah. And you're like constantly thinking of these questions, and suddenly one day it feels like BoJack is a mirror. Yeah. So all those questions just come back to you, that are you likable enough as a human being? How much should people understand when they're dealing with you? Like it just closed that loop, and I'm just like, oh shit. So there is a lot of BoJack in everybody, or even like a peanut butter. वो character भी है भाई. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अंडरवाटर वाला भी तो बहुत ही स्मार्ट था यार. And like you know the beauty is because the characters are animated and animals, so like they are giving you such like they are punching you again and again. Yeah. But the impact lessens because you think, oh, it's an animal. Like it's easier to consume when you know it's not a human, right? Yeah, exactly. Very nice. Exactly. ये वाली चीज मेरे को लगती है. और जैसे उसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है मेरे को the way मतलब मैं कहना नहीं चाहता, but it is so like today जैसे रिपोर्टिंग हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Exactly that. वो एक एपिसोड था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, right? And it's like न्यूज पैनल पर बैठे हैं 3 मर्द, ठीक है, and he says it out loud. We have 3 men who in the corporate world, here is the secretaries in suit and tie who are going to talk about women empowerment. And I'm just like, अरे बाप रे, क्या कमेंट्री हो रही है. बहुत ब्यूटीफुल है यार. और बोनस रिकमेंडेशन इसमें तो आप कुछ भी बताओ यार, आपके गिल्टी प्लेजर्स भी बताओ जो शोज पसंद है, क्योंकि दिस इज द आइडिया ऑफ लाइक हैविंग दैट कन्वर्सेशन. आजकल मैं तो Amazon प्राइम पे पावरपफ गर्ल्स देखता हूँ यार. लाइक बहुत मजा आ रहा है मेरे को. और द आइडिया ऑफ वाचिंग पावरपफ गर्ल्स इज आप हिंदी में ही देखो, इंग्लिश में मजा नहीं आता है.
हिंदी में वो टाउन हिल की लड़कियां वो जब तक नहीं आता ना तब तक वो मजा नहीं आता। मैं गिल्टी प्लेजर में पोकेमोन बहुत बार देख लेता कहीं पढ़ा है ऐसे ये बड़े मेजर ओटीटीज में? आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है आ बट मेजरली नेटफ्लिक्स पे बहुत पुराने वाले सीजन जो मैं कब के रैप अप कर चुका हूं, मतलब मुझे रट्टा हो गया वैसा वाला सीन। हम्म तो लाइक जो एपिसोड्स अभी चल रहे होंगे लाइक जो हाँ क्योंकि पोकेमोन अभी भी चल रहा है, इट्स सो क्रेजी, हाँ इट्स स्टिल गोइंग ऑन, इट्स ऑन इट्स 8th सीजन और समथिंग। वाह सो वाह आपका फेवरेट पोकेमोन कौन सा यार मेरा चार्जर्ड है, है? झूठ नहीं बोलना चाहता यार। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेवरेट बिकॉज वो लोग ने उस कैरेक्टर के साथ जिस हिसाब से टाइम स्पेंड किया है, लाइक हाँ अगेन हम एनिमे की भी बात करते हैं, तो जिस हिसाब से वो लोग ने एक वो पोकेमोन को इतना टाइम दिया, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, दे मेड अ फेवरेट आउट ऑफ इट। So when it became like a dragon, you're just like भाई ये स्टड है। And they followed the same story, like जैसे फायर पोकेमॉन्स के साथ वो लोग ने क्या किया था कि मतलब वो लोग ने स्टोरी बनाकर रख दी थी कि मतलब उसका ट्रेनर जो होगा वो बहुत ही हाँ बुरा ट्रेनर होगा, फिर वो उसको छोड़ देता है। हाँ तो स्टार्टिंग में फायर वाला पोकेमॉन बहुत कमजोर होता है। सो हाँ दिस हैपेंड विद चार्मेंडर, हाँ दिस अहेड हैपेंस विद चिमचार, दिस आल्सो हैपेंस विद टेकपिग। And I'm just like they followed the same story but in such different variations that राइट you always root for the character. राइट राइट So दिस yeah. इज सो कूल। उसके अलावा और जो भी चिल रिकमेंडेशंस, एनीथिंग दैट यू लाइक टू वॉच। कभी ऐसे एक फास्ट फूड वो होती है ना जो शोज जो होते हैं, जैसे मैं खाना खाते खाते हमेशा एक शो देखता हूँ कि जो जो ऐसे जिसमें आपको बहुत ऐसे हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। Brooklyn Nine-Nine. नाइस It is smart, it is funny, and at the same time like they have underlays of messages that they are giving. राइट ठीक है, but it is so funny. Like Jake Peralta as a character, I wouldn't say he's relatable because हम उतने नहीं करते, वैसी हरकतें सबकी नहीं है, but you just feel like कि कितना lovable character है, like you really love the character even without finding parts of you in the character, and I think that is a great thing. So that Naruto, नारुतो भाई नरूटो तो क्या ही मतलब फील्स देता है लाइफ में। एंड देन देयर इज दिस वन लास्ट सीरीज, इट्स कॉल्ड लव डेथ एंड रोबोट्स, अगेन ऑन नेटफ्लिक्स। Yeah, I think Fincher has also produced it, right? David Fincher ने उसे produce किया है. I He's think an so. EP. I think that's also very smart. Like it's animated, it's mini episodes, like it's 5-6 minutes episodes. Story like the episodes are not related to each other, complete in themselves. And again, brilliant. मतलब उसके 2-3 episodes तो एक हिटलर का episode है। हाँ Oh God, you have to watch it. It's मतलब they talk about like a character going back in time and just trying to correct history. ठीक है, so his correction of history is like what if we do not let Hitler come to power. ठीक है, and every time he's going in the past he's trying to kill Hitler and he's creating something in the process which is again causing a Nazi revolution. And I'm just like मतलब नहीं मर रहा भाई। The major concept is that you cannot, like killing one person doesn't kill the hate. right. They do it in a very funny manner, like the way they've approached it is very funny, but the message is that you cannot kill one person and think that hate will finish. Like you have to work, like you have to talk to people who hate, like what is the reason to hate, why do they hate, वो core value पर जाकर बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं किसी को मिटाकर खत्म कर सकते चीजों। So genius है भाई, मतलब Love Death and Robots is another genius episode. So yeah. काफी सही यार, काफी अच्छी टीवी शो रिकमेंडेशंस मिल गई। मैंने इनफैक्ट काफी सारे नहीं देखे हुए हैं। मेरा तो हॉटस्टार के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। मैं पिछले 1.5 साल से, क्योंकि हॉटस्टार की अच्छी बात ये है कि वहाँ पूरा HBO पड़ा है एंड HBO के शोज इन जनरल मतलब टॉप नॉच ही होते हैं। सो वो मेरे खत्म ही नहीं हो रहे। आफ्टर एवरी HBO show I start with a new HBO show, so it's just not ending and it's the greatest affair I've had with like a platform. काफी सही। Are you a fan of podcasts? Are there any podcasts that you would like to recommend to people? So I have been listening to this one very recently, Overthink Tank by Surbhi Baga. वो बहुत सही है, बहुत सही है। Like it's like, you know, the podcast that I love is that they create a chill vibe, but they end up giving you messages that really play with you for a really long time. So like the topics are very like, you know, the topic is going to be heavy, but the way they create the chill vibe now, because even though guests who are coming, they're like chill about it. Like अगर मैं बात कर रहा हूँ about कि you know there has been a sad time in my life or there has been a phase where things were not right, they're saying as if it has happened ना, हो गया, like अभी कहानी है, अब बस कहानी की तरह सुनो, मतलब it's just happening,
I don't want to create unnecessary emotion कि feel bad for me, empathize with me. That's not what the guests are doing. They're just saying it the way it is. There is this one about Roman mythology, myths and stories करके. Okay. It's an international one. क्योंकि I love Greek mythology. Nice. So just like listening to more stories about Hercules and Medulla, ये सब like it's always interesting to hear because Zeus as a character तो मुझे बहुत ही interesting लगता ही है. तो उसके बच्चों की जर्नी देखने में तो और मजा आ जाता है. देन जाकिर भाई का है गाना पे उम्मीद. उसके अलावा अबीश का ऑन ऑडिबल है. It's called The Unexperts. Again, brilliant. He's brought like 2-3 guests and he talk about topics that मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगी. मतलब it's not an easy topic to come in your head. जैसे the first episode I remember was languages. जिसमें जाकिर भाई आए थे and I had gone live for the TV. So it was so beautiful the way the approach to the topic is. Again, very chill vibe but giving out so much great information. अंशु मोर का भी है. अंशु मोर का भी एक है. So yeah, it's an interview format. And what kind of music are you into? आपको म्यूजिक कैसा पसंद है? मैं बहुत देसी हूँ अपने म्यूजिक को लेकर. Like very Indian lyrical songs. जैसे हैरी मेट सेजल में 2-3 ऐसे गाने हैं. जीवे सोनिया जी, चाहे किसी का भी होके जी. रॉकस्टार और तमाशा के तो एल्बम्स मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे पसंद है. और मुझे पता है लोग कहेंगे अरे यार ये मतलब वही घिसे पीटे वाले रिकमेंडेशन, बट आपको रॉकस्टार और तमाशा पसंद है. लाइक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू लव इट. लाइक इट स्पीक्स टू योर सोल. नो मैटर हाउ क्लीशे इट इज, यू विल ऑलवेज लव इट. एनएफ करके एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है. आई लव हिज रैप्स. एनएफ का वेरी ब्रिलियंट. I think like मैंने रैप में स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत कम देखने मिलती. So उसके रैप में I love the way he talks about topics. Like he talks about relationships. He talks about not just like relationships with a partner, like with a father also. उसका एक रैप है about his father and him. Those raps are very beautiful. I feel. I think इरशाद कामिल के मेजर लिखे हुए गाने बहुत पसंद. अब आते हैं हम फाइनली पोएट्री पे. पोएट्री पर. so वहाँ क्या आपकी recommendations है, प्लीज हमें बताइए. So if you are in the starter phase के मतलब आप बस शुरू ही करने वाले हो, जैसे आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो I would always suggest मानव कौल as a writer because मानव कौल की एक बुक है तुम्हारे बारे में. So again it's not exactly poetry but like what I love about his writing is especially in that book that कहानी और कविता के बीच में जो एक चीज होती है ना, उन्होंने उससे तकरीबन 180 पेज भर दिए कहानी और कविता के बीच में. 1 पेज स्टोरीज पोएम्स हो गए. पोएट्री एक्चुअली बहुत बार कॉन्सेप्ट भी हो सकता है ना. लाइक अ पोएम इज समथिंग दैट यू डिड नॉट थिंक अबाउट एंड द वे द फिलॉसफी कम्स अक्रॉस इन द स्टोरी. आई फील दैट्स आल्सो पोएम. मतलब मैं तो बहुत बार डायलॉग्स को भी पोएट्री समझता हूँ. जैसे हैदर में इरफान खान का एक डायलॉग था एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट. I still remember it was a very improv thing. इरफान खान had asked विशाल सर कि आप मतलब एक डायलॉग लिखिए यहाँ पर जरूरी, एंड he had written like a small poem. तो वो not a poem, it was just a dialogue. तो डायलॉग पोएट्री लगता है. तो सिमिलरली मानव कौल की राइटिंग भी वैसे है, लाइक एटलीस्ट इन तुम्हारे बारे में. अदर बुक्स आर लाइक प्रॉपर स्टोरीज, बट ये वाली 1-2 पेज वाली एक स्टोरी पोएम फॉर्मेट में चलती है. धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप तरकश, लावा, गुलजार साहब की त्रिवेणी, ये सब पढ़ सकते हो. बिकॉज आई थिंक जावेद साहब एंड गुलजार साहब आर 2 राइटर्स जो एज अ जनरेशन तो हम आइडेंटिफाई करते ही कि बहुत शानदार लिखते हैं. बट द ब्यूटी इज दैट दे डू नॉट राइट टू कॉम्प्लिकेटेड. दे राइट इट वेयर इट इज लिटरेचर एंड एट द सेम टाइम इट्स रिलेटेबल. क्योंकि जब हम गालिब पढ़ते हैं तो हमें लगता है गालिब ने लिटरेचर लिखा है, बट रिलेटेबिलिटी नहीं पता चलती. लाइक आप मैक्सिमम टेक्स्ट अगर गालिब का पढ़े तो ज्यादातर आपको नहीं समझ आएगा. बहुत मेहनत लगती है गालिब का टेक्स्ट डिकोड करने में, उन्होंने जो लिखा है. बिकॉज इट्स लाइक जैसे शेक्सपियर वो टाइम पे लिख रहे थे. शेक्सपियर अभी हम कहते हैं कि वो शेक्सपियर इज ग्रेट, बट ही रोट इन द लैंग्वेज दैट वाज अंडरस्टूड बैक देन, राइट? Now it is difficult to understand his language. Wasim Barelvi साहब है. I think also the problem with today as a timeline or time period is, or it's not even a problem actually, it's an accessibility. But I say it's a problem because हम किताबें कम पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं. तो जैसे even I feel के मतलब ये मैं भी बहुत बार गलती करता हूँ कि मैंने इतनी किताबें परचेज नहीं की है, बट मैं ऑनलाइन जाकर पढ़ लेता हूँ. जैसे कविता कोश और रेखता है, ये 2
sites है, right? So here you can access so many writers. और यही पे मतलब like I got to read about नरेश सक्सेना, विनोद कुमार शुक्ल, सुधीर मिश्रा. So I think these are beautiful writers. I think जैसे नरेश सक्सेना का तो I think अगर आप पढ़ेंगे तो अगेन इट्स इन द स्पेस जहां पर इट्स सो रिलेटेबल एंड इट इज सो सिंपल. ऐसा लगता है कि यार कितनी आसानी से कितनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने. जैसे उनकी एक लाइन है कि, और ये एक ही लाइन काफी है मतलब आपको ऐसे लाइक वाव करने के लिए. सो एक लाइन है कि पुल पार करना नदी पार करना नहीं होता. It's like just because you've crossed the bridge doesn't mean you've crossed the river. That, and it talks on so many levels. It talks about ये वाली like, मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे ये वाली पर्टिकुलर जो आपने गई थी एक बार हाँ. कॉल करके कहा था, तू ये सुन, दिस वन आई नो. या बहुत ही अच्छी है ये. बहुत जीनियस है यार. विनोद कुमार शुक्ल की तो ये हताशा से एक आदमी बहुत ही शानदार है. सो इट बेसिकली इट्स वेरी सिंपल. ही टॉक्स अबाउट दैट हाउ ही इज वॉकिंग ऑन द रूट और वो देखते हैं कि एक आदमी हताशा से बैठ गया. तो वो कहते हैं कि मैं आदमी को नहीं जानता था, मैं हताशा को जानता था. तो मैं आदमी के पास गया, मैंने मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था. तो उसने मेरा हाथ थाम कर वो खड़ा हो गया. हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम साथ चलने को जानते थे. क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है. और इंग्लिश में आई फील लाइक इंग्लिश में आई स्टडी अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे राइटर्स मोर लाइक बिकॉज शेक्सपियर मैं स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ता था. ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड लाइक इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ सिलेबस. ठीक है, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक आई वाज अ वेरी लिटरेचर पर्सन. लाइक आई यूज्ड टू लव शेक्सपियर. मुझे टॉप करना था वहां पर और मैंने टॉप किया है शेक्सपियर. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ये दोनों तो बहुत ही मतलब पसंद थे मेरे को. बट देन धीरे धीरे यू रियलाइज दैट व्हाट शेक्सपियर इज टॉकिंग इज नॉट like it's great but you still have to decode so much. like आप नहीं पढ़ पाओगे, you have to take other text to understand what he's actually saying. So then I shifted to like modern day poets. जैसे अभी रूडी फ्रांसिस्को है, right? रूडी फ्रांसिस्को है, एंड्रिया गिब्सन है, नील हिलबर्न है. So these guys are also in the spoken space. Like, so I also learn from them in the aspect because they are in the same field as I, but in a different universe. Right. Correct. And there is so much that I get to learn from majorly Rudy Francisco. Okay. Like I think his performance aspect, the way he approaches his topics is so beautiful. और हिंदी spoken word में आजकल कब से मुझे ऐसे रमनीक सिंह बहुत पसंद है. रमनीक सिंह, गौरव त्रिपाठी, beautiful writers. Ankita Shah, she writes in English. Very beautiful these guys are, the way they've written text. How cool. So I think हमने like बहुत अच्छी आपने recommendations दी है. Is there anything that I might have missed या in general art form related कोई चीज आप बताना चाहें जो शायद मैंने नहीं पूछी हो? I think हमने काफी तो डिस्कस कर लिया. सीरीज, म्यूजिक, पॉडकास्ट, पोएट्री. मैंने मूवीज नहीं किया, but like if there is any movie that you want to talk about. So the idea with films, the way I see films is like, again I have seen a lot of film, right? International cinema देखा है. मतलब मामी के हर साल ऐसे 4 साल से like हर मामी में जाकर बैठ जाते थे, जितना कंटेंट हम कंज्यूम कर सके उतना कर सके. But the thing what happens with me in films is I always tend to remember or recommend films where I could find myself one, or they are relatable to me as a character. अगर हम international cinema की बात करते हैं ना, there is so much. जैसे अगर Parasite is a brilliant film, right? But it doesn't come directly to me when I'm giving a recommendation list. Nice. Because I don't find myself in the film. It's a genius film. There is so much underlay. हम मतलब उसके ऊपर काफी conversations कर चुका हूँ मैं. But अगर आप मुझे recommendation मांगोगे, मैं सबसे पहली चीज मेरे मुंह से तमाशा निकल आती है. क्योंकि I think the idea with cinema, the way I grew up watching cinema, is that हम बॉलीवुड ही देखकर बड़े हुए. क्योंकि our parents always knew just Bollywood, right? Absolutely. For us, it's always been about कि मतलब we need to relax. Cinema was relaxation. It was not supposed to be like let's bombard information to you. So I always grew up on Bollywood cinema, and I would always find
entertainment and relatability in characters. I've always wanted more emotion for myself. So even after developing a taste, और like मैं कह सकता हूँ कि चला हमने इतनी इंटरनेशनल फिल्में देख ली, हमने ये देख लिया, मैं आपको ये पिक्चर बताता हूँ, जापानीज सिनेमा बहुत ही शानदार है, कोरियन का तो आप देख लो, बट एट द एंड ऑफ द डे रॉकस्टार और तमाशा is something I will sit back and watch. मेरे साथ भी सेम है, लाइक मैं तो मेरा तो एक सीरीज भी है चैनल पे जहाँ मैं मूवीज रेकमेंड करता हूँ, बट टाइम टू टाइम आई कीप रिमाइंडिंग पीपल कि आप सिर्फ मेरे को वैसे मत देखो कि हाँ इसको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बहुत पसंद, हाँ कि इवेंचुअली मैं घर आके 2 पिक्चर ही मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, कल हो ना हो और वीर ज़ारा लाइक मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है फिल्म्स, लाइक अब तुम्हें लगे कि यार तूने लाइक दिस डजंट गो विद योर लाइक जो तू करता है, दिस बोथ आर द पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, एंड exactly. ऐसा नहीं हो सकता कि वो पसंद है तो ये नहीं हो सकता. यू कैन अप्रिशिएट पैरासाइट एंड स्टिल बी अ फैन ऑफ वीर ज़ारा. सो दिस इज व्हाट आई आल्सो बिलीव इन. प्रॉब्लम क्या होता है ना, it's about choosing one side. Like हाँ, वो people always फैशनेबल feel, बन हाँ जाता है ना लोगों के लिए कि हाँ यार मैंने तो कोरियन सिनेमा, तेरे को पता ही है पार्टीज में यू लुक कूल अगर आप जाके बताते हो तो. अरे एग्जैक्टली वही होता है, बिकॉज द आई थिंक द बिगेस्ट कर्स ऑफ नॉलेज इज दैट द मोर यू अटेन इट यू वांट टू शो ऑफ मोर, एग्जैक्टली. है ना. तो मैं अगर 100 फिल्में देखता हूँ जो किसी ने नहीं देखी, मैं तो दिखावा करना चाहूंगा, बिकॉज देन दे विल वैलिडेट मी कि ओ ही इज अ जीनियस, है ना. भले ही मैं भी घर पे जाकर ऐसे में जब शाहरुख खान कहता है नैना आई लव यू, मैं कहता अरे भाई यार डायरी पे अगले पन्ने पे कुछ नहीं लिखा है, भाई साहब ने मोनोलॉग दे दिया, दिल जीत गए भाई शाहरुख खान. लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू लव, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू रिलेट एग्जैक्टली. व्हेन योर मूड इज लो, है ना. लाइक व्हेन यू आर फीलिंग रियली रियली लो इन लाइफ, will you watch Parasite is my question. बिल्कुल So I सही बात. think it's an like I feel like people also need to find that understanding in life जहाँ पर you can appreciate art films without belittling commercial films. बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल. कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज कमर्शियल सिनेमा की वजह से भी एक तरीके से आर्ट फिल्म्स भी आगे आ पाती, बिकॉज शाहरुख खान ने सिनेमा का एक ये बना दिया कि एवरीवन वाज लाइक शाहरुख खान, सिनेमा बिकेम अ क्रेज, राइट. या बिकॉज शाहरुख खान, दिलीप कुमार, ये सब ने क्रेज बनाया सिनेमा का, और उस क्रेज पर हम आर्ट फिल्म भी बनाकर दिखा पा रहे लोगों को थिएटर में. मैं जैसे सिम्बा देखने गया था, ठीक है, मैं सिम्बा गेटी गैलेक्सी में देखने गया था, एंड देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई, ऑडियंस. जो वाइब क्रिएट होती है ना, जब जैसे अभी रणवीर सिंह भाग कर आता है, कोई डायलॉग लेता है, जनता जैसे हूट करती है, I feel like it's such a beautiful emotion कि Yeah. all of us without knowing who we are so connected, Yeah. are rooting for a character. मतलब कुछ भी कर रहा है वो character on screen, Yeah. but we are rooting for him, we are enjoying this, and I think that's exactly what Indian cinema is for me, like the way I grew up. So I think you can appreciate both art and commercial cinema. I don't think there needs to be this space के मतलब ओ ये commercial देख रहा है, इसको art नहीं समझ में नहीं आता होगा. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैं इतना रिलेट करता हूँ इस चीज से क्योंकि मैंने 100 एपिसोड बनाए जहाँ मैंने सिर्फ इन वर्ल्ड सिनेमा की बात की, बट अब मेरे को भी ना लग रहा है कि पीपल शुड नो दिस अदर साइड ऑफ मी आल्सो. तो मैंने अभी एक एपिसोड सिर्फ घोसला पे किया. भाई तुम्हें पता होना चाहिए घोसला कितनी अच्छी पिक्चर है. लाइक आई टॉक्ड अबाउट इट, लाइक इतनी शानदार मूवी है यार. सो लाइक आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट लाइक एज लॉन्ग एज आई कुड. It's very smart. सारे कैरेक्टर्स, सबकी एक्टिंग, अनुपम खेर, पवन ईरानी, व्हाट वर्क दैट इज भाई, व्हाट वर्क दैट इज. नाइस यार. तो मजा आ गया यार. लाइक आई होप यू आल्सो एंजॉयड No, I टॉकिंग loved it, अबाउट यार. दिस. So जाते जाते it would be great if you can ask our like viewers to subscribe to चलचित्र टॉक्स. अगर आप एक आधी लाइन बोल दे हमारे चैनल के बारे में. गाइस देखो, लाइक आई थिंक दिस इज यूट्यूब पे मैं बहुत कम ऐसे चैनल्स देखता हूँ दैट गिव आउट recommendations, राइट, एंड इट्स नॉट देयर पर्सनल recommendations. They're bringing people, they are trying like their best to bring in more and more people to give recommendations according to them. So I think for their efforts and for the recommendations that they put out, they definitely deserve a subscribe. ऑलराइट, मतलब सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अगर आपको ये रिकमेंडेशंस, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताते रहिएगा कि मतलब आपको क्या पसंद आया, व्हाट अबाउट द वीडियो डिड यू लव, व्हाट यू डिड नॉट लाइक. वी आर ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म. Thank you so much, Yaya. No problem, man. It was a pleasure.